आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। 1-1-1-6-6-4, that was the most costly over of 23 in the great rivalry India versus Pakistan. That is always been a hike, always been a fantastic moment in the game, and mother of all cricket games, completed in the reserve day, where India win resounding actually because of two of their batter could not come to bat. So welcome back once again in your favorite show of sports, that is Khel Ki Baat Radio Tashan ke saath. With me as always my two experts, Mr. Samrat ji and Mr. Ramkishan ji. Congratulations to both of you as well as all the Indians wherever they are in all over the world, first of all. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Now, let's talk about the match, how it went actually. First day, that was the official day of the match when it was to be played. India versus Pakistan, always, as I earlier said, hike, always a game of intensity, and everything was there. It was completely affected by the rain the first day. 24.1 overs, 147 for 2. Good partnership up front by the openers of 121. Shubman Gill batted with great intent. Rohit Sharma showed some skill for what he's known actually. Hit all the short balls for a 6, 4 sixes in his inning, and won the maximum sixes award as well in the presentation when it was done. Shubman Gill, as I earlier said, played a fantastic knock. He's a very young player. Great kind of confidence shown by him. Treat to watch Shubman Gill when he was batting. And then after, when the match resumed today itself at 3:00 p.m. IST, that was Indian Standard Time, officially on the reserve day. It was even injustice, as I earlier said in the previous shows. But again, the match went into the reserve day. It was raining as well on the reserve day. Match got underway a little late, but again, no over were lost. 50 overs game. India batted superbly. Good partnership of 233. Kohli made 122 of 94. Good running actually. Very good running between the wickets in between. And KL Rahul, good comeback. 106 of 111 of 106. That is what was scored by him. And no wicket lost, just 2 wickets. And then in reply, Pakistan dismissed on 128 runs for the loss of 8 wickets. 2 of their batter could not come to bat. Babar Azam was dismissed by Hardik Pandya. A good in-swinging delivery off his tongue was knocked over. And other batsman, Kuldeep, was just making fun of them. Scalp 5 for the loss of, 18 runs, I think, in 6 or 7 or whatever he's bowled. 5 wickets. Now coming back on the discussion actually, because I have told you all the summaries. ज्यादा अंग्रेजी हो जाएगी तो लोगों को समझ में कम आएगा। जो हिंदी वाले होंगे गालियां और देंगे हम लोगों को, तो बेहतर है हम हिंदी में आ जाते हैं। चलिए रामकिशन जी, मतलब ये एक तो ये 33-34 घंटे लगे इस मैच को खत्म होने में, और ये ना भूलें आप कि भारत को अगले ही दिन 3 बजे एक और मैच खेलना है। कितना कठिन होगा, जीत पर तो बाद में आऊंगा, सबने बधाई आप को हमने दे दी। कितना कठिन होगा ये मैच श्रीलंका के साथ भारत को दोबारा खेलना है। जी हाँ, देखिए, मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि सचमुच बड़ा ही कठिन ये निर्णय होने वाला है, और उससे भी कठिन अब पाकिस्तान के लिए भी हो गया है। और वास्तव में अभी हम आपके सवाल पे आए तो वास्तव में बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि थकान पूरी तरह से उतरी भी नहीं होगी, क्योंकि 11 बजे मैच खत्म हुआ है। थोड़ी देर मौज मस्ती होगी और उसके बाद खूब एंजॉय होगा और खूब जश्न मनेगा
क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच था। इस वजह से जश्न मनेगा, ऐसा जश्न मनेगा मानो आपने पूरी ट्रॉफी ही जीत ली हो। और तत्पश्चात फिर और करिकुलम होंगे, तो कल मेंटली तैयार हो पाएंगे या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। दिखने में चीजें आसान लगती हैं, लेकिन सचमुच बड़ी कठिन चीजें हैं। और फिर क्या कोई बारिश का प्रभाव होगा, क्योंकि भारत को ये ध्यान रखना होगा, भारत ने मैच जीता जरूर है मगर रिजर्व डे में इस मैच को जीता गया है। जी समरथ जी, क्या लगता है आपको, बैक टू बैक मैचेस खेलना आसान होगा किसी भी टीम के लिए? माना कि भारत में सभी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने टेस्ट मैच खेला है, उनको टेस्ट मैच का अनुभव है, तो ये थोड़ा सा उनके पास कह भी रहे थे प्रेजेंटेशन में। हाँ, वो वही मैंने बताया ना, मैं वहीं से उठा के लाया चीजों को विराट कोहली के वर्ड्स उठा के लाया मैं। तो he said that he's completely fine, no problem, he'll be able to play without any problem because he is a test player, played over 110 test matches. तो he was looking very confident. आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो शुक्र ये है कि 50 ओवर पूरे पाकिस्तान जो है वो खेला नहीं। अगर वो खेलता तो फिर ये होता कि आज ही भारत को खेलना है, और फिर ये गेंदबाज ये कहते कि देखो हमने एक दिन में 2 मैचों में बॉलिंग की है अलग अलग ओपोनेंट के सामने। हाँ, ये हो सकता था, हुआ नहीं। लेकिन देखिए, जहां तक जीत का जो सवाल है, तो रामकिशन जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आसान कतई नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो श्रीलंका अपने घर में खेलेंगे, और फिर 13 मैचेज वो जीत कर आए हैं, तो इस समय अच्छी टीम है वो। और एक दिन में जिस तरह से गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 7-8 घंटे का आराम कह सकते हैं। 7-8 बजे मान लीजिए जगेंगे, तो फिर दिन में अभ्यास करेंगे, तो आराम तो है ही नहीं। तो जब आराम नहीं है तो किसी भी दृष्टिकोण से आसान होगा नहीं। और ये सही बात है कि भारत ने मैच जीता जरूर है, रिजर्व डे पे जीता है। अगर 10 तारीख को बारिश ना होती, मैच का रिजल्ट आता, तो फिर एक दिन भारत को आसान हो जाता, क्योंकि आराम का जो है एक दिन मिलता। बट क्या है कि अब आपको केवल 7-8 घंटे आराम के लिए मिल रहे हैं, तो इस लिहाज से आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। और पाकिस्तान का जहां तक रहा प्रश्न, तो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका देखा जाए तो सबके लिए कल का जो मैच होगा वो डू एंड डाई जी। अब लौटते हैं भारत पाकिस्तान के मैच पर। इस मैच पर आगे भी हम चर्चा करेंगे इस शो में। बहुत ज्यादा लंबा शो नहीं करेंगे। अब हम समझ सकते हैं, कई बार व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते हैं पर्सनली कि बहुत लंबा शो होता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का मैच ही ऐसा है तो लंबा शो करना पड़ता है। रामकिशन जी, समृद्ध जी दोनों मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। हम लौटते हैं इस मैच पर। भारत ने जब रिजर्व डे से खेलना शुरू किया, 5-6 ओवर बड़ा जबरदस्त तरीके से रोक कर रखा पाकिस्तानी बॉलर्स ने। रन्स बने नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि वो शायद सी ऑफ कर रहे होंगे, दोनों प्लेयर्स बॉल को देख रहे होंगे, नजर ठीक से जमाने का प्रयत्न कर रहे होंगे, इसलिए शायद रन गति बहुत स्लो थी। डोंट यू थिंक गाइज? दोनों में से आप, पहले समृद्ध जी फिर रामकिशन जी, आपका नंबर आएगा समृद्ध जी के बोलने के जस्ट बाद। समृद्ध जी, आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उन 5-6 ओवरों में बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं नजर आया? अदरवाइज भारत को भारत के एक आध विकेट गिर सकती थी। हाँ, बिल्कुल गिर सकते थे। जिस तरह से दोनों ओपनर आउट होकर के गए थे, तो उसके बाद में बॉलिंग तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की। 5-6 ओवर अगर मुझे ठीक से याद आता है, तो केवल 11-12 के आसपास की रन बने थे। और फिर उसके बाद में जब विराट कोहली, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो वो भी मतलब काफी मतलब कोई बहुत तेजी से खेल नहीं हुआ 5-6 में, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे भी छोड़े और अतिरिक्त रन भी काफी सारे दिए। तो ये है कि अगर अटैक पाकिस्तान करता रहता, जो उसने नहीं किया 5-6 ओवर में, तो भारत एक आधे विकेट मतलब और खो सकता था, जो कैसे छूटे थे पाकिस्तान से एक आधे जल्दी में। वो यदि वो सही समय पर आते तो फिर शायद 357 न देखते जी। रामकिशन जी, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? जी, क्या सवाल है आपका?
मैं ये पूछ रहा था, जो शुरुआत के 5-6 ओवर थे 24 ओवर के बाद, यानी कि जो 25वां ओवर फेंक दिया गया, 24.1 ओवर हुए थे, 5 गेंदें फेंकने के बाद जो आखिरी के और 5 ओवर थे 25 से 30 के बीच का जो इंटरवल या गैप ब्रेक जो भी कह लीजिए, ब्रेक क्या था, मैच चल रहा था, तो वो मैं ब्रेक इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको जो ब्रेक मिला था, आप फ्रेश होकर आए थे, आपके पास वो बॉलर्स थे जो बॉल को दोनों दिशाओं में मूव कराते हैं, मूवमेंट आपको मिल रहा था, पिच पे नमी जरूर रही होगी, बरसात हुई थी, उसके बाद मैच शुरू होने से पहले बरसात हुई थी, आज भी। तो क्या पाकिस्तान ने सही उसका शायद फायदा नहीं उठाया? आपको नहीं लगा कहीं अटैक करने में चूक हुई उनसे? और जी हाँ, देखिए इसको हम दो तरीके से देखेंगे। पहला जो तरीका है वो ये है कि निश्चित तौर से पाकिस्तान को वापसी के भारत ने कम से कम 2 से 3 मौके दिए। पहला मौका जब मैच शुरू हुआ, शुरू के 4 से 5 ओवर में 18 से 20 रन बने और वहां पे भारत बहुत ध्यान से खेल रहा था। शायद अटैक करना चाहिए था, बहुत ज्यादा अटैक करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। और वैसा पाकिस्तान ने किया नहीं, रक्षात्मक खेल खेला। और इसका कारण समझा जा सकता है कि हैरिस रऊफ पहले ही आज के दिन से बाहर हो गए थे, तो लेकिन फिर भी एक जो आउटसाइड चांस था, वो चांस वहां पे था और उनको लेना चाहिए था। दूसरा चांस मिला जब भारत ने लगभग 11 ओवरों में 78 रन बना लिए थे। 35 ओवरों की समाप्ति पर 225 रन बनाए थे। वो 35 से 40 ओवर का जो फेज था ना, वो फेज भारत संघर्ष कर रहा था। कुछ अच्छे गेंदबाजों के ओवर चल रहे थे, लेकिन फिर वही है, भारत तो ये सोच के आया था हमें विकेट नहीं खोनी है, चाहे थोड़ा स्लो हो जाए। लेकिन पाकिस्तान को इसको एक मौका समझना चाहिए था। उनको कहते हैं ना, सिक्के पे एक तरफ लिखा होता है चुनौती तो दूसरे तरफ लिखा होता है अवसर। उसी तरह से उनको समझना चाहिए था कि यहाँ भारत संघर्ष ही नहीं कर रहा, यहाँ हमें एक विकेट चाहिए और वहीं से गेट ओपन हो जाएगा और वहीं से शाहीन शाह अफरीदी एक कोलैप्स की तरफ बढ़ सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए। और अंत में फुल क्रेडिट देना चाहूंगा मैं भारत के दोनों बैटर को कि वाकई सूझबूझ से भरी हुई बल्लेबाजी, जहां उनको लगा कि विकेटें गिर सकती हैं वहां उन्होंने बहुत संभाल के खेला, और जहां उन्हें लगा कि हम अटैक कर सकते हैं, जैसा इफ्तिखार जब आए तो उनको लगा हम अटैक कर सकते हैं, तो केएल राहुल ने भरपूर स्ट्रोक प्ले किया। तो केएल राहुल तब तक स्ट्रोक प्ले करते रहे जब तक कोहली फॉर्म में नहीं लग रहे थे, टच में नहीं लग रहे थे। और जब कोहली का टच वापस आया, जैसे ही 50 कोहली के हुए, वैसे ही कोहली ने पारी को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। जी मैं इसी पर आता है कि एक मौका और था 35 से 40 ओवर के बीच में, उस पर आपने टिप्पणी दे ही दी। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पर भी मौका था पाकिस्तान के पास, लेकिन शायद उन्होंने उस मौके को गवा दिया। और कई बार ऐसा लगा उनकी गेंदबाजी देखकर, मतलब जो देखने वाले लोग थे मेरे साथ जो देख रहे थे इस मैच को, तो ऐसा कई बार लगा भारतीय दोनों बैटर जो दोनों खेल रहे थे, वो कई बार ऐसा लगा अनसेटल्ड है, सेटल नहीं है। इतनी देर खेलने के बाद भी कई ऐसी गेंदें थी, वो चाहे फहीम अशरफ की कुछ कुछ गेंदें बड़ी जबरदस्त गिरी, नसीम शाह जो थे वो इंजर्ड बाद में हुए, उससे पहले वो बड़ी सही बॉलिंग कर रहे थे। बड़ा कमाल का था, बिल्कुल 225 रन जरूर थे, लेकिन उसमें केवल 2-3 रन गए थे 36। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा खतरनाक ओवर था। तो वहां मुझे लगता है शायद एक लेग स्लिप या लेग गली लेके, क्योंकि आपके पास कैचिंग पोजीशन पर लोग थे नहीं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। तो आई वॉज इन अ कंप्लीट व्यू ऑफ दैट कि एक दो और अटैकिंग फील्डर्स लेके पाकिस्तान शायद अटैक कर सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत के दोनों बैट्समैन फॉर्म में आए। विराट कोहली की अच्छी इनिंग, केएल राहुल गुड कम बैक आफ्टर 7-8 months of injury. He is regarded as a brilliant batsman as far as इंडियन मिडिल ऑर्डर इज कंसर्न। उनसे कहीं बैटिंग करा लो आप, मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा करके दिया। पहले उन्होंने भारत को ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ जब आते तब भी अच्छा करते थे। बीच में एक ऐसा फेज आया जब शायद केएल राहुल
एक दौर से गुजर रहे थे। 2.5 सालों के बाद एक शतक आया उनके बल्ले से, ये भी आपको पता होगा। मैच अगर आपने बहुत ढंग से फॉलो किया होगा, आप दर्शकों ने शायद पाकिस्तान का मैच था तो मिस तो नहीं ही किया होगा, तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं इन बातों पर कि क्या और बेहतर हो सकता था। कई कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद भारत ने कुछ थोड़े मोड़े रन कम बनाए, हालांकि 356 बहुत रन होते हैं। ये तो 110% श्योर था कि बनते इतने नहीं आसानी से 356 रन, अगर भारत बहुत ही घटिया बॉलिंग नहीं करता तो। नहीं, या 48 ओवर तक देखो लग रहा था, 48 तक ये लग रहा था कि यार 350 नहीं बनाएंगे तो बड़ा दुख होगा। बिल्कुल। 330 या 32 के आसपास रन थे। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद की जो 12 गेंदों में से, और खासकर तब जब वहां एक नो बॉल हो गई, पहले चौका हुआ, फिर नो बॉल हो गई, फ्री हिट हो गया, तो फिर जो अंतिम में एक जो शॉर्ट गेंद डाली, उससे जब 6 जड़ा विराट कोहली ने, और 48 ओवर तक भी लग रहा था कि 350 शायद नहीं बनेगा। हाँ हाँ, आप सोचिए 50वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स आए थे। ये बड़ी अजीबो गरीब बात थी। 2 बैट्समैन आपके जो सेटल्ड हो 100 के पार खेल रहे हो, उसके बाद भी एक अच्छी लय पे बॉलिंग करना। हुआ यूं, एक शॉट विराट कोहली लेग की तरफ खेलना चाहते, पता नहीं क्या सूझा उन्हें, मल्टी सेकंड के अंदर, जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, ही चेंज हिज माइंड एंड प्लेड इट टुवर्ड्स द ऑफ साइड, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। तो वो मतलब एक अजीबो गरीब और इनोवेटिव शॉट था। वो लेग की तरफ खेलना चाहते थे और अचानक से बल्ले को ऑफ की तरफ मोड़ दिया और वो चौका गया, और उसके बाद वो फ्री हिट आई, नो बॉल थी जो आप सबने देखा। तो वहीं से कहीं भारत को एडवांटेज मिला, और उसके बाद पाकिस्तान शुरू से गेम में नहीं थे। द वे बुमराह स्टार्टेड, द वे सिराज cooperated him, the way he bowled, it was an absolute beautiful experience of fast bowling. Treat to watch these two guys, the way they were bowling in the initial phase of the match. From the first over till the 7th, 8th over, Bumrah bowled 5 overs, and then after he never came back into the attack because of overloading. I think मुझे लगता है कल भी मैच खेलना है, और मैं ये चाहूंगा नहीं कि भारत में कोई परिवर्तन हो। आप दोनों में से ऐसा कौन है जो चाहता है कि भारतीय टीम में कल परिवर्तन हो? कई एक्सपर्ट्स ऐसी चर्चा कर रहे थे कि भारतीय टीम में शायद परिवर्तन होना चाहिए, या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब फॉर्म में हैं तो रेस्ट की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? आप 5 दिन का टेस्ट मैच भी तो होता है। तो ये समझ के अगर भारतीय टीम आएगी शायद बेहतर मेंटल फेज में होगी, बट हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। जैसे हमने पहले कहा, श्रीलंका अपने घर में है और वो आराम करके आएगी। भारत थकी थकी होगी, लेकिन अगर आज के जमाने में इतनी तमाम सारी चीजें हैं तो शायद अगर उनमें से कुछ भी इस्तेमाल किया जाए तो भारत उन चीजों से उबर सकता है। लेकिन हाँ, वो नियमों के विरुद्ध होगा। खैर, ये तो एक अलग बात, मजाक की रही। एक जमाने में रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग वगैरह की तमाम बातें आई थी, वो भारत कर नहीं सकता। और एशिया कप में कई ऐसे विवादित चीजें रही, उन पर मैं आऊंगा, लेकिन आपकी टिप्पणी समृद्ध जी और रामकिशन जी पहले आप बताएं जो मैंने पूछा। क्या पूछा आपने? आप में से मैंने कहा, क्या लगता है आपको टीम में चेंजेस नजर आते हैं आपको? हाँ, अब मैं अपनी बात सकता हूँ। देखिए, मुझे लगता है अभी भी यदि कोलंबो में मैच है और हम एक पेसर को खिला रहे हैं, मुझे लगता है भारत शायद थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कर रहा है। मुझे लगता है हमें अक्षर पटेल के साथ जाना चाहिए बनिस्बत शार्दुल ठाकुर के, क्योंकि शार्दुल ठाकुर से जो उम्मीदें की हैं काफी मैचेस बीत गए हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। बस एक चीज उनके फेवर में जाती है, वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ यदि स्पिन होगा, देखिए कुलदीप ने 5 विकेट लिए, 5 विकेट हाल लिया, और ये तो आज पाकिस्तान थी, दबाव में थी, वो भी दबाव में। जब बाबर आजम आउट हुए तो वो लोग कहीं ना कहीं हताश हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, और उनको ये लगने लगा बस अब हमें कोई इस मैच में नहीं निकाल सकता। इससे पहले उनको सबको ये उम्मीद थी कि आज बाबर इस मैच को निकाल के हमें अवश्य देगा। ये मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा अपना मानना है हमें अक्सर के साथ जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं जो टीम जीतती है उसके साथ छेड़छाड़ होती नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ शायद कोई चेंज हो ना, लेकिन यदि मेरी अपनी राय मांगी जाए तो मैं ये चाहूंगा कि अक्षर पटेल को शार्दुल की जगह तरजीह मिलनी चाहिए। जी
समरथ जी, आपकी क्या राय है? कोई परिवर्तन नजर आता है आपको भारतीय टीम में, या फिर भारतीय टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी? देखिए, क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो कह पाना बहुत मतलब कठिन है। लेकिन परिवर्तन की जहां तक बात है, तो परिवर्तन मेरे हिसाब से कल के मैच में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल इतना बड़ा मैच है एक प्रकार से देखा जाए कि श्रीलंका के साथ श्रीलंका में मैच है, और श्रीलंका जैसा अभी आपने कहा कि रेस्ट करके आएगी और हम लोग थके हुए होंगे। तो अगर आपको परिवर्तन करना है, ठीक है, एक भी परिवर्तन आप करते हो या दो करते हो, तो आपका जो बांग्लादेश के साथ मैच है, आप उसमें परिवर्तन जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन कल की डेट में परिवर्तन वैसे लगता नहीं कि होगा, और होगा भी तो अगर ये बात है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कल की डेट में मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए परिवर्तन। सी आई एम इन द व्यू कि भारत कहीं स्पिनर्स को लाने में देर कर रहा है कोलंबो जैसी पिच पर, जहां स्पिनर्स को अच्छी खासी टर्न मिलती है, कई बार मॉइस्चराइज होती है पिच, वहां पे कुछ पैचेस होते हैं, डैम पैचेस जिनको हम कहते हैं, वहां पे जब बॉल पड़ती है तो टर्न ज्यादा होती है। आप जो सीन का जो सीम पोजीशन कह लीजिए बॉल की, वो ज्यादा बेहतर अगर कुलदीप ने जैसा दिखाया आज करके, वो स्पिनर शायद बेहतर कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग मामला है, उस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, और भारतीय थिंक टैंक में भी कई लोग होंगे जिनकी राय जुदा जुदा होगी। अच्छा चलिए, ये तो रही है इस मैच की बात। थोड़ा सा विवादास्पद चीजों पर आते हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे, किसी और मैच के लिए रिजर्व डे नहीं, सिवाय फाइनल के। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सुना, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जो आर्टिकल्स पढ़े या जो मेरी अपनी समझ है क्रिकेट को लेकर, वो ये कि आप केवल कमर्शलाइजेशन की वजह से आप किसी और टीम के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, माना एसीसी आपके अंडर में है, जय शाह उसके सेक्रेटरी चेयरमैन कुछ भी कह लीजिए वो है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप और टीमों के साथ नाइंसाफी कर दें और सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में भारत पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे रख दें। ये कहीं से ठीक मुझे नहीं लगा। कम से कम हमने इससे पिछले मैच से पूर्व इस पर एक शो किया था, उसमें भी इस बात पर जिक्र किया था, लेकिन अभी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए आईसीसी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आईसीसी से भी कुछ सवाल जवाब इस मामले में कई मीडिया रिपोर्ट्स जो आई उनके हिसाब से हुआ, लेकिन आईसीसी ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि जी ये एसीसी का टूर्नामेंट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट यू थिंक दैट आईसीसी शुड इंटरवीन इन द कंट्रोवर्सी? आपको लगता नहीं कि आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय मैच है तो फिर अंतरराष्ट्रीय मैच है तो फिर वो आईसीसी के थ्रू रहेगा, तो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहिए। क्योंकि विश्व कप में देखिए, अगर ऐसा होगा तो आईसीसी शायद मे भी कि वो इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए आईसीसी को कुछ ना कुछ तो इस विषय में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए कल का मैच रद्द होता है तो फिर रिजर्व डे नहीं होगा, वहाँ 3 अंक होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा तो रिजर्व डे नहीं होगा, तो ये नाइंसाफी है, और इसमें आईसीसी को कुछ ना कुछ जो है जरूर करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल मैच है तो कुछ ना कुछ तो, क्योंकि जब आईसीसी देखिए रैंकिंग दे सकता है मैचों के बाद में, तो फिर आईसीसी इस विषय पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकता है, जो कि उसे करना चाहिए। मेरी समझ से एक चीज परे है, वो ये कि जब इतने बड़े मैचेस में रिजर्व डे के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ साथ श्रीलंका जैसे बोर्ड एग्री कैसे हो गए? इसका एक जो सीधा रीजन मुझे समझ में आता है वो ये, शायद श्रीलंका की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो एक पल के लिए उनके दिमाग में ये बात आई होगी। ये मेरा अजम्पशन है, मैं वहां पे हूं नहीं, इसलिए मैं कुछ ठीक ठीक नहीं कह सकता कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान का मैच एक दिन और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ लोग जो आए वो तो आएंगे ही, हमें तो फायदा ही होगा। रामकिशन जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं भी यही कहने वाला था जो आपने बात कही कि आप कह रहे थे बार बार कि आईसीसी की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे काउंटर सवाल कि चलिए मैं मानता हूँ एसीसी ने प्रस्ताव लाया कि भाई रिजर्व डे रखना है इन मैचों के लिए, 2 मैचों के लिए, तो आप सारे बोर्ड बैठे थे वहां, सबके अपने अपने प्रतिनिधि थे,
आपने यदि उस पे हस्ताक्षर किए होंगे तभी वो उसने उस चीज को जो है मान्यता दी होगी। और उसमें कई सारी चीजें हैं। तो क्या उनकी गलती नहीं है जो विभिन्न जो वहाँ के टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं, उनमें अफगानिस्तान, उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, क्योंकि राय सभी बोर्डों की होती है। और यदि कोई आपत्ति करता है, मेरी नॉलेज है, यदि आप सही कर सकते हैं, यदि कोई आपत्ति करता है तो फिर वो चीजें दोबारा से डिस्कस होंगी। और चलिए, और टीमों को तो हम मान भी लेते हैं। श्रीलंका ने अपने आप को कंप्रोमाइज किया, जो आपने बताई बात बिल्कुल वही बात सार्थक है। उनको भी पैसे से लेना देना है और किसी चीज से नहीं। तो उनके मन में भी यही आया होगा, अरे ठीक है, एक दिन के बजाय 2 दिन यदि मैच होगा तो हमारा ही तो बेनिफिट है। तो यदि ये नहीं है तो फिर और क्या है? यदि ये नहीं है तो फिर इन बोर्ड्स को आगे आके अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। और यदि आपत्ति दर्ज कराई गई है, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, इसलिए मैं कुछ टिप्पणी इस पे देने से बचना चाहता हूं। अदर देन दैट कल को एक बड़ा इशू बन जाए, वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपत्ति दर्ज कराई गई है और भारत क्योंकि एक सुपर पावर है क्रिकेटिंग दुनिया में, बीसीसीआई से बड़ा कोई बोर्ड है नहीं, ये आप सबको पता होगा। जितनी उनकी टर्नओवर है उससे ज्यादा किसी और बोर्ड की टर्नओवर नहीं है। तो ऐसे में क्या वो दबाव में आके उन आपत्ति को दर्ज नहीं करा पाए होंगे? अगर हम ये मान लें तो ये नाइंसाफी है। अगर लेकिन हम ये मान लें कि उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज कराई तो फिर ये श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान सभी बोर्डों के जो प्रतिनिधि थे उनकी साफ साफ गलती है। और ये आज नहीं तो कल उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि छन छन की खबरें आएंगी, नो डाउट। आप इस बात को बड़े हल्के में ना लें। पाकिस्तान ऐसे कमेंट, देखिए ऐसा है ना, अब जब रिजल्ट आ गया है तो अब पाकिस्तान से भी ये कमेंट्स आएंगे। एब्सोल्युटली, आप देखिएगा, आप सुनिएगा, पाकिस्तान से भी अब ऐसे ही कमेंट आएंगे। देख, तो हम इस बात को बड़े हल्के में ना लें, क्योंकि ये क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए बड़ी खराब बात है। और तो और एक बड़ी अजीब और गरीब चीज हुई, जब 1 घंटे हो जाते हैं, बरसात नहीं रुकती है, उसके बाद जब बरसात रुकती है, आपने हमेशा नोट किया होगा। और आज क्योंकि दिन का खेल भी आपको याद हो तो देर से शुरू हुआ, 4:20 के आसपास से, मेरी अगर जानकारी ठीक है तो 40 मिनट, 100 मिनट के रुकावट के बाद भी ओवर्स कम नहीं हुए। कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा मैच है, कौन सा नियम? डोंट यू थिंक गाइज दिस इज कंप्लीटली व्हाट आई कैन से, मैं तानाशाही कह लूं या फिर क्या कह लूं, आई डोंट हैव व्हाट टू एक्सप्लेन। दो इंडिया हैज और देखिए, अभी जब फिर ब्रेक आया तो फिर 35 से 40 मिनट का absolutely, and no overs were lost. It was completely unexpected. Though India has won the game, we are all happy. We should be happy because we are here in India, and India defeated Pakistan by a huge margin of 228. Not to forget, they played a fantastic cricket throughout the day. They bowled well, they batted well, they fielded well. At some point, they dropped a catch, 1 or 2 actually. Other than that, Pakistan would have been fouled earlier. But again, if I talk about justice, it should be done with everybody. मैं इन बातों को समाप्त करने से पहले केवल एक ही निष्कर्ष के बारे में बात करूंगा, वो ये कि देखिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था इसके आगे। और जिसमें भारत का स्वार्थ छिपा था कि भारत को ये लग रहा था कि यार जो है हमें अल्टीमेटली वहां पे जाना है, क्योंकि मैच 3 ही खेले जाएंगे और तीनों कॉम्पिटिटिव टीम है। तो अल्टीमेटली भारत को तो जिताने का मकसद था, जो रिजर्व डे रखा गया था, पैसे का मेन इशू था। और रही लंका की बात, तो बता ही दिया है उनका क्या स्वार्थ था। पाकिस्तान का भी एक स्वार्थ था, पाकिस्तान को भी अपनी गेंदबाजी पे काफी गुरूर था। और पाकिस्तान को ये लगता था यदि मैच अगले दिन जाएगा और अगले दिन शुरू होगा तो हमारे गेंदबाज जो शुरुआती लम्हा होता है, जो शुरुआती समय होता है, उसका हमारे गेंदबाज फायदा उठाएंगे। भारतीय बैटर को खेलने में समस्या आती है, हमारे तेज गेंदबाजों को। उनको ये नहीं पता था कि हमारी ये स्थिति होगी, रॉफ चले जाएंगे, ये होगा, वो होगा, या एक बहुत लंबी चौड़ी साझेदारी बुन जाएगी। ये उनको किसी को कुछ चीज की खबर थी नहीं। ये तो एक इत्तेफाक ही कहेंगे। इसीलिए
निष्कर्ष यही है, ओवरऑल जो भी हुआ सब इसमें शामिल थे। यदि दोषी कोई है तो एसीसी के साथ साथ मैं कहता हूं सभी कंट्रीज ही दोषी हैं। अब कहने को पाकिस्तान कुछ भी कह के पल्ला झाड़े, लेकिन अब ये बात कहीं ना कहीं से मानना कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सहमत होंगे तभी तो ये सारी चीजें हुई अल्टीमेटली। और मैं आपको सच बताऊं, बीइंग एन इंडियन, मतलब आप में से दोनों में से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे मुझे नहीं पता, बट मैंने जब ये सुना कि रिज्यूम होगा प्ले कल 3 बजे, तो मैं यही सोच में था। मैं आज अपने ऑफिस में भी यही डिस्कस कर रहा था कि यार ऐसा है, पाकिस्तान अगर खेलने आएगा ना तो उनके बॉलर जो है फ्रेश होंगे। अफरीदी अच्छी फॉर्म में, रौफ जबरदस्त फॉर्म में। किसको पता था कि रौफ हम भी सोच रहे थे किसको पता था कि रौफ को चोट लग जाएगी या नसीम शाह चले जाएंगे बाहर। तो मैं तो ये सोच रहा था कि भारत कैसे टैकल करेगा, क्योंकि विराट कोहली कुछ दिनों से कुछ अच्छे लय में नजर नहीं आ रहे थे, उतना ठीक से उनके फुट चल नहीं रहे थे, आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना जबरदस्त था नहीं। बीच के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, बीच में कुछ अच्छी पारियां खेली जरूर विराट कोहली ने। केएल राहुल कई महीनों बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के 1-2 विकेट जल्दी गिरेंगे और उसके बाद कोलैप्स होने के पूरे पूरे आसार थे। यही बात मैं डिस्कस करता, बट ऐसा हुआ नहीं। भारत ने एक जबरदस्त बैटिंग का डिस्प्ले किया। दे स्कोर्ड second joint highest score against Pakistan of 356. Last time it was 356 against Pakistan in कौन सा शहर था वो, विशाखापट्टनम में, मुंबई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। विशाखा हाँ, विशाखापट्टनम में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने 356 रन बनाया था, लेकिन विकेट ज्यादा गिरे थे और इस बार विकेट सिर्फ 2 ही गिरे, 200। और वहाँ पीछा किया था 349 तक पाकिस्तान। एब्सोल्युटली पाकिस्तान एक गेंद में 6 रन चाहिए था शायद। नहीं, वो मोइन खान वाला वो मोइन खान का मैच, वो मोइन खान स्ट्राइक पे था। कराची, बिल्कुल आप बात कर रहे हो। बिल्कुल, हाँ वो मैच मुझे भी याद है, कराची में मैच था वो। तो प्रेम विनीत कमेंट, प्रेम और विनीत करके, एब्सोल्युटली। खाली इंदर साइमन ट्रफल अंपायर थे, ये भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, अब थोड़ी श्रीलंका की बात 2 मिनट कर लेते हैं। श्रीलंका में क्या थ्रेट्स है भारत के लिए? क्या लगता है आपको, कौन ऐसे बॉलर्स हैं जो थ्रेट्स बन सकते हैं भारत के ओपनिंग बैट्समैन के लिए? रामकिशन जी बताएं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि श्रीलंका की जो गेंदबाजी हाल फिलहाल रही है वो काफी अच्छी रही है, और उनके पास क्वालिटी स्पिनर है तीक्ष्णा के रूप में, उनके पास क्वालिटी तेज गेंदबाज हैं, और डेथ स्पेशलिस्ट मतीशा पथिराना और बिल्कुल। तो अच्छी टीम है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि भारत पथिराना को यदि निकाल लेगा सही से, भारत यदि पथिराना और वेलिलिज हैं उनको यदि वो निकाल लेगा, तो मुझे लगता है कि मैच भारत और लंका का 50-50 होगा, क्योंकि जो मतीशा पथिराना है वो मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बिल्कुल, भारत ने श्रीलंका से भी हाल में उतनी क्रिकेट खेली नहीं है, और श्रीलंका का जो हालिया रिकॉर्ड रहा है बड़ा जबरदस्त है, 13 मैचेस लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल उभरती हुई टीम है, यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है। द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ, it looks that it will be a 50-50 game for both the sides. Yes, India will be in some good condition. They will have some upper hand because they're better side on paper actually. और कई बार ऐसा होता है पेपर पर बेटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आउटफील्ड में या 22 गज की जो पट्टी है उस पर अगर बेस्ट ना दे पाए तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। कल फिर 3 बजे मैच है। कल मैं कह रहा हूँ 12 तो नहीं बजा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करेगा तो मे भी कि उतने रन वो न बना पाए जिससे भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, और अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो भारत 270-75 मतलब 80 तक भी अगर बना लेता है तो श्रीलंका में फिर, पर वही है कि जो रामकिशन जी ने कहा कि अगर मतीशा पथिराना को निकाल लेंगे तो काफी हद तक जो है अपने हक में बात रहेगी। और महेश तीक्ष्णा भी हैं, वैसे भी जो धोनी जी की छत्र छाया से निकल कर आया होगा आसान गेंदबाज कहाँ हो, तो इन महेश तीक्ष्णा और मतीशा पथिराना ये
ये निकालने ये को दो होते की हैं। प्लेयर्स श्रीलंका के लिए होंगे, और भारत के लिए मैं समझता हूं अगर पहले टॉस जीते तो भारत को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि फील्डर सारे बैटिंग करनी थके चाहिए, होंगे। बिल्कुल साहब, थोड़ा सा बैटिंग रेस्ट करनी जरूरी है, और क्योंकि नेट प्रैक्टिस भी होगी, अभ्यास भी होगा थोड़ा सा आउटसाइड जो होता है मैच के पहले। और अगर आपको परिवर्तन करना है ना, तो मैं अपनी जो सोच अगर आपको बताऊं तो शायद आप गेंदबाजों से के साथ कोई रिस्क ले सकते हैं। बैट्समैन में किसी को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जो बॉलर्स हैं, अगर किसी को रेस्ट कराना चाहते हैं, बुमराह को या किसी को, वहां पे आप शमी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक चेंज जो मेरी समझ में आता है, वो कोई तो फोर्स, सिराज की जगह शमी को कर लेना चाहिए फिर, हाँ, अगर यही बात है। ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दो मैच का अनुभव उसे भी होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता फाइनल में कुछ ऐसा वैसा हो गया और शमी को खेलना पड़ा अचानक से, तो फिर वो बड़ा मुश्किल बनेगा। और वो फाइनल मैच भी कहीं और नहीं, कोलंबो में है। उसमें बरसात के पूरे आसार हैं, कल के मैच में बरसात के पूरे आसार हैं। उसके बाद भारत बांग्लादेश का जो मैच है वो भी बरसात से धुलने की पूरी संभावना है। तमाम अटकलों को अगर हम विराम दें तो बस सिर्फ इतनी बात निकल कर आती है कि यहाँ 6 टीमें नहीं बल्कि 7 टीमें एशिया कप खेल रही हैं। 7वीं टीम है बरसात, और बरसात कई बार कईयों का काम बिगाड़ देती है, कईयों का बना देती है। पाकिस्तान 20 ओवर से पहले यही उम्मीद कर रहा होगा कि किसी ना किसी तरीके से बरसात आ जाए, खेल रुक जाए 19 ओवर में और ये शेयर्ड हो जाए पॉइंट। लेकिन भारत 20 ओवर के लिए दुआएं मांग रहा होगा कि 20 ओवर कैसे ना कैसे हो जाए। मैं थोड़ा वरिड था जब जब भारत ने दोबारा शुरू किया खेलना पाकिस्तान के साथ, जब बरसात के बाद खेल रुका। मेरा अपना मानना था उस समय स्पिन को लगाकर जल्दी जल्दी भारत को ओवर निपटाने चाहिए थे। जडेजा एक ऐसे बॉलर जो 1.5 मिनट में या उससे भी जल्दी ओवर खत्म कर देते। कुलदीप 2 मिनट 2.25 मिनट में ओवर खत्म कर लेते हैं। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि अगर बरसात दोबारा आ गई, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भारत स्पिनर से जल्दी जल्दी अपने ओवर्स निकाल के 20 ओवर तक पहुंच जाता। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तब देखिए गलत हो सकता था, क्योंकि क्या था कि शुरुआत में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो उसके लिए लक्ष्य रखा गया था 20 ओवर में 144 का, और वो भी बिना नुकसान। तो फिर जल्दी जल्दी स्पिनर तैयार नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 44 पे 2 तो हो गए थे। मैं 11 ओवर के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। वहाँ स्पिनर को लगाने। हमें रामकिशन जी, डोंट यू थिंक अगर, या फिर भारत ने ठीक किया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है भारत ने ठीक किया, क्योंकि ये दुधारा तलवार थी। ये भी हो सकता था कि यदि 20 ओवर होते होते और हमारे स्पिनर्स को मार भी पड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ पे फखर खेल रहे थे। आपको यदि याद हो तो फखर और रिजवान खेल रहे थे। रिजवान स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फखर भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। एक दो शॉट्स बड़े गजब खेले थे फखर ने। Absolutely, that was the 6 he hit it. It was absolute beauty, middle of the bat. एक यार कमाल का शॉट तो था। मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से जल्दी कोई चीज करने के बजाय आप टाइम लें, लेकिन सॉलिड काम करें। वो काम किया, अपनी बॉलिंग को उतना नहीं चाहिए, वो काम किया। और अंत में स्कोर लाइन की भी बात करें, फखर ने 27 रन बनाए, 23 रन बनाए इफ्तिखार ने, और बाकी खास कुछ किसी ने योगदान दिया नहीं। बिल्कुल, सलमान ने भी कितना, सलमान ने भी 23 रन बनाए। हाँ, 22-23 रन बनाए थे सलमान ने भी। 23 बनाए थे सलमान। या उसकी तो चोट हम मानते हैं, भगवान से हम ऐसी दुआ करते हैं। हो एब्सोल्युटली। घटना से आज सलमान अली गुजर गए थे ना यार, बाकी लग रहा था कि कहीं हमारे भाई तो नहीं बनने जा रहे हैं। बाकी जो भी कुछ हुआ, जो भी मैच में घटा, वो पूरी समझ यही है। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, और उधर से बुमराह ने इमाम को आउट किया, और वहीं पे शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया, और 1 विकेट बाबर आजम के रूप में हार्दिक पांड्या को मिला। वो बड़ी अच्छी गेंद थी, अनप्लेबल बॉल थी वो। बिल्कुल, बहुत गजब की गेंद थी यार। नॉर्मल स्विंग थी मुझे लगा। बोल्ड थे बाबर आजम। हाँ, बोल्ड थे वो, ऑफ स्टंप ऊपर गया यार। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक मेरे पास खबर है जो कि यूएस ओपन से जुड़ी हुई है। वो ये है, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम जीत लिया। ये उनके करियर का 24वां खिताब है। भाई साहब, न जाने कितने और जीतेगा ये खिलाड़ी।
अगर आपने खबर दी है तो बहुत बहुत बधाई हो नोवाक जोकोविच को। और टेनिस के सभी लवर्स को जो भी इससे प्रेम करते हो उन सबों को बड़ी बधाई, जी क्योंकि हाँ। आप में से ज्यादातर लोग इन्हीं के फैन होंगे। भारत में टेनिस उतना ज्यादा पॉपुलर है नहीं। ठीक है, कई एक प्लेयर आए भारत के लिए, उन्होंने खेला। जी हाँ, जी हाँ, उसमें सानिया मिर्जा को कौन भूल सकता है, बस उनकी आलोचना सिर्फ इस बात से होती कि वो पाकिस्तान में जाके शादी कर ली। हाँ, लोगों ने आलोचना में नहीं, सानिया को लोगों ने आलोचना में कहा कि शोहरत भारत में आके कमाई और शौहर पाकिस्तान में जाके। लेंडर पेस, महेश भूपति, ये सब तमाम नाम है टेनिस की दुनिया के भारत के लिए। कबड्डी में भारत का इतिहास आप जानते ही हैं, बड़ा अच्छा रहा है। हॉकी में भारत अच्छा करता आया है और इस बार कुछ मेडल्स वगैरह भारत को मिले भी थे इस बीच। अभी भारत ने पाकिस्तान को हरा के एशिया कप खिताब, हाँ बिल्कुल, ये बात कहीं रह सी गई थी लेकिन मेरे दिमाग में थी। तो इस तरह की चीजें तमाम होती रहती हैं। मुझे लगता है हमने काफी चर्चाएं कर ली हैं अब। अच्छा, एक चीज है कि मैन ऑफ द मैच जो है, जैसे यार बॉलरों का उत्साह गिरता है। जिस हिसाब से अगर कुलदीप ने 5 लिए, किसी नाम को प्रचार करने में या किसी नाम के ही पीछे आप पड़ जाएं, जैसे चेन्नई सुपर किंग में क्या है कि ज्यादातर कुछ धोनी करे न करे, लोग धोनी को ही सिर्फ ऐसा लगता है कि जानते हैं, तो किसी एक को उतनी तरजीह जो है नहीं देना चाहिए। और गेंदबाज अगर कुछ अच्छा करता है तो उत्साह के लिए यार मैन ऑफ द मैच का हकदार जो है उसको भी होना चाहिए, दिया जा सकता था। 5 के जो कंटेंडर थे जी, जो आज का विषय है ना वो दूसरा है। दरअसल वो इसलिए, वैसे यदि कोई और दिन होता तो बिल्कुल 5 विकेट वाले हॉल को मैन ऑफ द मैच मिलता, लेकिन आज जो सच में जब भारत 123 पे 2 था, उसके बाद से जो 356 तक पहुंची है, और उसमें भी हमने कोई ऐसे वैसे अटैक का सामना नहीं किया। हमने भी दुनिया के, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन अटैकों में बेहतरीन गेंदबाजी है, मैं अभी भी मानता हूँ कि विकेट जरूर गए लेकिन वो फिर भी बेहतर है। सुपरस्टार हमने अटैक को झेला है, और इस अटैक में लोग सब, फिर जब ऐसी बात आती है तो बात कहनी पड़ेगी। लोग कहेंगे, कोई कहेगा कि इसका योगदान है, कोई कहेगा उसका योगदान है, लेकिन मैं मानता हूँ यदि किसी ने भारत को इस मुकाबले में यहाँ पे खड़ा किया, मेरा अपना मानना है, यदि किसी को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस मैच का श्रेय केएल राहुल को देना चाहूंगा। मैं उनका फैन नहीं हूँ, मुझे कम पसंद है, वो अलग मसला है। अदरवाइज केएल राहुल ने सच में कोई शब्द नहीं है। Yeah, he batted superbly. Absolutely, he batted superbly. So a great rivalry finished. India versus Pakistan, round 2 completed today in about 33 hours or so. We hope another round will be played in the finals of the Asia Cup. Not sure. अच्छा, विराट ने जो पहले 50 बनाए थे वो 55 गेंदों में, right? यार लास्ट की 39 गेंदों में, इसका मतलब अरे बाप रे। Yes, he scored many runs. Right. वो 41 गेंदों में 48 रन थे, उसके बाद बाकी गेंदों में 86 रन बनाए, तो बड़ी जबरदस्त इनिंग। So he was doing beautifully. इसके लिए भी पूरा क्रेडिट केएल राहुल को जाता है कि उन्होंने उनको सेट होने दिया। हाँ, राहुल ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। जो काम शुभमन गिल ने किया था रोहित शर्मा के लिए, वही काम विराट कोहली के लिए केएल राहुल ने किया। कोहली सेकंड फिडल खेल रहे थे बहुत देर तक, राइट? रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त, मतलब राहुल को भगा भगा के थका दिया भाई। लास्ट में केएल राहुल थक गए थे और तब विराट कोहली ने रनिंग बिटवीन द विकेट तो वैसे भी माशाल्लाह है यार विराट भाई साहब। वो अच्छा, आप देखो टैक्टिक्स देखो ना, होता क्या है, वो विराट कोहली गया, कह रहा जी पानी पीना है जी, थक गया मैं तो, और उसके बाद क्या किया, पानी पिया, उसको ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था। बंदे ने क्या किया, बोला यार मैं तो ग्लव्स भूल गया अपना, तो उसमें उसने 4-5 मिनट निकाल दी। ये एक टेक्निक होती है, टाइम कैसे बाइट करना है। कई बार आपके जब फेवर में चीजें ना हो रही हो, आप थक गए हो, तो टाइम को कैसे बाइट करना है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कला होती है, और वो कहीं से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। खैर, हमें लगता है आज हमने बहुत डिस्कशन कर लिया। अ गुड फिनिश between India and Pakistan. Let's hope for the finals, which will be played on 17th of this month, if possible. Other than that, it will be a reserve day on 18th. Until then, we hope India will win their remaining matches and Pakistan as well. Then we will be again meeting with the Pakistani pace attack and Pakistani
pace battery in the finals. So let's hope for the best and wait for the rest how things will pan out. Till then, have fun and stay tuned on your. पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच होगा वो भी कोलंबो में होगा. हाँ, सारे मैचेस कोलंबो में. Yes. So stay tuned on Radio Tashan for more information. Thank you to both of you for joining us in the show. Good night. Shab Bakhair. Goodbye. Thank you.